हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पवेलियन। मैं हूं फखर-ए-आलम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स इन द ARY's app and our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 in India. And the journey continues. The tournament is still at a stage where it's very difficult to determine that who the semi-finalists are going to be, but some teams are definitely shining bright and looking very, very good. सबसे पहले तो आपको इंट्रोड्यूस कराता चलूँ, मेरे साथ मौजूद पेविलियन के अंदर पाकिस्तान के 4 माजी के बेहतरीन कप्तान, 4 former captains, 4 outstanding cricketing minds who've been analyzing games with us over here. I've got the young, dynamic, and he delivered a lot of games for Pakistan to finish them up really nicely. Captain Pakistan as well, and played spin really, really well. Not to mention that he was an outstanding fielder. I've got Shoaib Malik. Shoaib, good morning and assalamu alaikum everyone. With that, I've got the Mr. Dependable of the Pakistani batting order. Whenever our batting order went out of order, he would always bring order at least to one end. The most successful test captain of Pakistan's test cricket. I've got Misbah al-Haq. Misbah, assalamu alaikum and good morning. Wa alaikum assalam. Good morning. Thank you. Janab, 8 टेढ़ी उंगलियां, 2 सीधे अंगूठे, मेरे बेहतरीन दोस्त, सिल्वर फॉक्स ऑफ द पेविलियन, कैप्टन पाकिस्तान, kept wickets when some of the fastest bowlers in world cricket used to operate from both ends, was known as the man of crisis and delivered many victories to Pakistan. Moin Khan, assalamu alaikum and good morning, Moin. Good morning. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum everyone. And finally, cricket royalty in the house, the undisputed Sultan of Swing, the king of all-rounders. I've got the great legend himself, Wasim Akram. Good morning, assalamu alaikum, Wasim. Good morning and assalamu alaikum everyone. Hope everybody is okay. Yep. कल बेंगलुरु में पाकिस्तान को शिकस्त हुई ऑस्ट्रेलिया के हाथों। ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही खतरनाक नजर आई कल। दे प्लेड एक्सप्लोसिव क्रिकेट। पाकिस्तान वेल दे जस्ट कुडंट रियली पुट अप। ये स्कोर कार्ड आपके सामने मैच समरी लेकर आते हैं। दिस इज द मैच समरी, दिस इज हाउ इट वेंट डाउन। पाकिस्तान ने कल टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत दी, थिंकिंग कि ड्यू जो है वो बड़ा फैक्टर प्ले करेगा चेस में। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी बॉलरों पे आते साथ ही हमला कर दिया और एक बहुत ही एक्सप्लोसिव स्टार्ट। इट वाज अ वार्नर मार्श शो बिकॉज दे पुट अप ए फिनोमिनल ओपनिंग पार्टनरशिप। दोनों की बड़ी सेंचुरीज लगी। मार्श ने 121 रन बनाए, वार्नर ने 163। ये याद रहे कि वार्नर का कैच 9 रन पे गिरा था उसामा मीर से। उसके बाद सोइनिस देयर विद 21 एंड इंग्लिश विद 13, बट इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। द बिग पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान, शाहीन शाह अफरीदी looking really good there with 5 for 54 in those 10 overs, and he was perhaps the saving grace in that bowling lineup. Now हारिस रऊफ ने 3 विकेट जरूर हासिल की, लेकिन 83 रन्स देने के बाद उसामा मीर अपनी पहली आउटिंग में थे, and those are not the figures that he would have wanted for his debut. जवाब में इमाम उल हक ने 70, अब्दुल्ला ने 64। एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप शुरू हुई और लग यूं रहा था एक टाइम पर कि पाकिस्तान जो है ये टोटल चेस कर लेगा, लेकिन फिर वही कहानी दोबारा जो है वो दोबारा चली हमारे सामने, और वो था कोलैप्स। तकरीबन 36 रन पे 6 विकेटें हमारी जो है दोबारा गिरी उसके बाद, एंड देन पाकिस्तान couldn't even play out its 50 overs. Zampa picking up 4 wickets, Stoinis 2 and Cummins 2, and Australia winning that with a big margin of 62 runs. इसके साथ ही आइए जरा पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं। सूरत हाल पॉइंट्स टेबल की क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। This is how the points table is looking now. New Zealand, India sitting right on top. New Zealand at number 1 because of their net run rate. Right behind is India looking really very strong. South Africa, they did get one surprise, nasty surprise from Netherlands, but they are sitting pretty at number 3. And Australia, after defeating Pakistan, moved to Pakistan's spot of number 4. Pakistan slips to 5. England, Bangladesh, Netherlands, Afghanistan, Sri Lanka down the order. मगर आज बड़े मुकाबले हैं। आज इंग्लैंड का साउथ अफ्रीका से और फिर श्रीलंका का नेदरलैंड से। इसके बारे में बात करते हैं। ये मैच आइटम्स आपकी खिदमत में पेश करते हैं। पहला मैच हम आपकी खिदमत में लेकर आएंगे। 10 बजे शुरू होगा। नेदरलैंड्स बामुकाबला श्रीलंका लखनऊ से। ये लखनऊ स्टेडियम हम आपको बराह रास्त लेकर चलेंगे। और फिर दूसरा मुकाबला, बड़ा मुकाबला आज, डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड एंड दे आर गोइंग टू बी टेकिंग ऑन साउथ अफ्रीका। मुंबई से बराह रास्त 1:30 बजे आपकी खिदमत में पेश होगा ना। याद रहे कि साउथ अफ्रीका को नेदरलैंड्स की वजह से एक झटका लगा हुआ है, इंग्लैंड को अफगानिस्तान की वजह से एक झटका लगा हुआ है, एंड बोथ द टीम्स वुड लाइक टू हैव मोमेंटम ऑन देयर साइड, सो दैट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट फॉर यू। लेट्स स्टार्ट अप द फर्स्ट मैच, द बिग मैच टुडे। बिफोर वी टॉक अबाउट दैट क्विकली, कल रात भर मैं देखता रहा हूँ सोशल सारे के सारे हमारे
हमारे जो हैशटैग है आज द पेविलियन वसीम, उस पे एंड फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह जो है बहुत सारे मैसेजेस लोगों के आ रहे हैं. ऑफ कोर्स पीपल स्टिल अ लिटिल हर्ट फ्रॉम लास्ट नाइट्स डिफीट एंड स्टिल क्वेश्चनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर. Again, आज सुबह when you woke up, what was going through your mind about last night's game? I felt the same like everybody else is feeling. और obviously जिस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी टीम है, आप के दिल में है कि ये टीम हमारी जीत के आएगी, अच्छी फाइट करेगी. ठीक है, हार जीत गेम का हिस्सा होता है, बट कोई प्लानिंग नज़र नहीं आई. एंड आई एम ऑल विद पीपल्स फ्रस्ट्रेशन एंड सैडनेस एंड छोटी छोटी चीज़ें मिस की हैं. अब ऑस्ट्रेलिया फॉर इंस्टेंस रात को 3 ओवर बिहाइंड था, 3 ओवर्स दे वर बिहाइंड. अगर ये 2-4 गेंदे और खेल लेते, ये ओवर ख़त्म कर लेते, हम 27 गेंदे पहले हम आउट हो गए हैं. अगर ये ओवर ख़त्म कर लेते जिसमें आउट हुए हैं, तो शायद उनको एक फील्डर और अंदर बुलाना पड़ता. दैट्स अ न्यू लॉ नाउ. तो नया फील्डर अंदर आता, स्कोर आपके और हो जाते, आप क्लोज चले जाते, आपका रन रेट बेहतर होता. अब ये चीज़ें हम नहीं यहाँ बैठे बता सकते, क्राउड ने, वो फैंस नहीं बता सकते, वे तो वहाँ जो बैठे हैं उनके थिंक टैंक हैज टू ब्रिंग दैट अप. बिल्कुल ऐसी ही बात है. इस वक्त हम लेंगे पेविलियन पे एक ब्रेक, बट व्हेन वी कम बैक वी टॉक अबाउट द 2 big games today. Don't go away, keep watching Sports and Sports and the ARY's app. Hello and welcome back to the Pavilion. I'm Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY's app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup. Today we have a double header. 2 मैचेस आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे. पहला मैच लखनऊ से बराह रास्त आपके लिए, और उसके बाद दूसरा मैच मुंबई से. दूसरा मैच जो मुंबई में है आज, बड़ा मैच है. दैट इज इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका. याद रहे कि दोनों टीमें जो हैं, दोनों को एक शॉकर मिला है. इंग्लैंड को अफगानिस्तान से एक शिकस्त हुई है और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड से. लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस डिस्कशन. इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, डिफेंडिंग चैंपियंस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका that looks like a very very good team. Misbah, how do you think this game is going to go down? What do you think? What are your thoughts about this game? बहुत बड़ी गेम है. स्पेशली इंग्लैंड को अगर देखें, साउथ अफ्रीका के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. इन द काइंड ऑफ फॉर्म दे आर, थोड़ा सा झटका उनको लगा है, और दोनों थोड़ा सा जिसको हम कहेंगे इस टाइम काफ़ी इनके लिए परेशानियां हैं. इंग्लैंड ऑब्वियसली 2 मैच हार चुकी है और इंग्लैंड के लिए अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है. साउथ अफ्रीका लास्ट गेम में उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर सकी जिस तरीके से वो पहले करते हुए हैं. लेट्स सी. अब इंग्लैंड की स्ट्रेंथ जो बेसिकली है, दे वांट टू चेज अगेंस्ट अफगानिस्तान. उनको झटका लगा, वो चेज नहीं कर सके. इसी तरह जब साउथ अफ्रीका को देखते हैं तो उनकी जो इस टूर्नामेंट में नज़र आ रहा है, देयर स्ट्रेंथ इज़ टू बैट फर्स्ट. राइट. अब कल के आज के मैच में जो मेन ये इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि क्या डिसीजन करते हैं दोनों टॉस के बाद, क्योंकि मुंबई में ऑब्वियसली ड्यू फैक्टर, वेंकटे में ड्यू फैक्टर होता है. इस वर्ल्ड कप का पहला मैच. The pitch was a road IPL में पिछले में. Average score was 196. And secondly, I think Ben Stokes probably will be available for England today. If he comes in, उनकी टीम स्ट्रॉन्ग तो हो जाएगी. बिल्कुल, मेरे ख्याल में बड़ा बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं. बैलेंस उनका जो टीम का है वो उस तरीके से नहीं चल रहा. और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बेन स्टोक जिस किस्म का वो कल्चर लेके आए, जिस तरीके से वो खेलते हैं, और अभी भी उन्हें रिसेंटली एक बहुत बड़ी इनिंग खेली है वनडे में, और आते ही उन्होंने अनाउंस किया, मेरे ख्याल में वनडे की सबसे बड़ी इनिंग इंग्लैंड की तरफ से खेली है उन्होंने. तो एक बूस्ट मिलेगा इंग्लैंड को और बैलेंस थोड़ा बेहतर होगा. फिर वो शायद मोइन अली को भी कहीं ना कहीं उसकी जगह लेके आ सकते हैं. एक जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर उनका, आई डोंट नो कि वेदर ही कम्स इन द टीम, बॉलिंग कर पाएंगे, पूरे फिट है, या सिर्फ बैटिंग के लिए आएंगे. बट मेरे ख्याल में की प्लेयर है उनके. शोएब, लेट मी ब्रिंग दिस यू. साउथ अफ्रीका की बॉलिंग, इंग्लैंड की बैटिंग, और फिर इंग्लैंड की बॉलिंग और साउथ अफ्रीका की बैटिंग, और टक्कर का मुकाबला है हर डिपार्टमेंट के अंदर. बिल्कुल टक्कर का मुकाबला है, लेकिन दोनों टीम्स जो है स्ट्रगल कर रही हैं बैटिंग सेकंड. जो हम लोगों ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट देखा, इंग्लैंड ने स्ट्रगल किया. फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका को देखा, उन्होंने स्ट्रगल किया अगेंस्ट नीदरलैंड्स. तो अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या करना है टॉस जीत के. और जैसे मिसबा भाई ने बात की इंग्लैंड की, तो मुझे लगता है कि क्रिस वोक्स की भी जगह मुझे लग रहा है कि डेविड विली आ सकते हैं, क्योंकि दोनों टीम्स ऐसी हैं, वो ये चाहती हैं कि हाई स्कोरिंग मैच हो और जो बैटिंग साइड है या जो बैटर्स हैं हमारे, वो मोमेंटम में खेलें और वो चेज़ करें. लेकिन दोनों की सोच ऐसी है. इंग्लैंड जो है वो मुझे लग रहा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है. उनका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है हल्का चल रहा है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस टूर्स वेयर एवर दे हैव टूर्ड. तो आज जो है ये बहुत मज़ा आने वाला है कि टॉस जीत के दोनों टीम्स में जो भी
टॉस जीतेगा वो क्या करता है पहले, तो आज जो है ये, लेकिन हम सबको बड़ा मजा आएगा ये सारे ये दोनों मैचेस देखने का, क्योंकि ये दोनों को डस्ट लगा हुआ है एक एक को, तो जो आज का मैच जीतेगा उसके स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाएंगे टू फिनिश इन द लास्ट। मुझे लगता है मलिक साउथ अफ्रीका फिर भी थोड़ी क्लियर होगी कि टॉस जीत के वो मुझे लगता है बैटिंग करेंगे। वो पिछले मैच में उन्होंने देख लिया है कि चेस जो है वो अंडर प्रेशर उनके लिए मुश्किल है। इंग्लैंड ज़रूर नॉर्मली दे वांट टू चेज, लेकिन अभी उनकी जो बैटिंग का कॉन्फिडेंस है वो उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा है। तो लेट्स सी। दोनों टीमें वसीम डसी हुई हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? नो बिल्कुल ठीक कहा। यार डायलॉग है ये, तो क्यों है आपके डायलॉग की आवाज करना प्लीज एक दिन प्लीज डायलॉग आपको। मैं नाग हाँ। That's perfect. नहीं, अभी आपने बात की थी क्रिस वोक्स की, चेंजिंग सब्जेक्ट फ्रॉम नाग टू क्रिस वोक्स। सैम करन के भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है अभी तक, शायद उसकी जगह भी खिला सकते हैं किसी को, बिकॉज क्रिस वोक्स इज स्लाइटली क्विकर देन सैम करन। रीस टॉपली है लेफ्ट आर्म ऑलरेडी उनके पास जो खेल रहा है प्लेइंग 11 में, तो सैम की जगह आ सकता है कोई आपका, स्पेशली मोइन अली, डिपेंड्स ऑन द पिच वेंकटे की इज अ बैटिंग ट्रैक, और वहाँ पे भी छक्के बड़े बड़े लगते हैं, ब्यूटीफुल ग्राउंड। Yeah, but we'll find out once the teams come about for both sides. Bowling के अंदर सैम करन की आपने बात की, पर साउथ अफ्रीका की साइड की तरफ आ जाते हैं। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है इस वक्त, ऑल बॉक्सेस आर टिक्ड। मोइन, आई थिंक पिछले मैच में जिस तरह इंग्लैंड ने स्ट्रगल किया है अगेंस्ट द स्पिनर्स, तो यहाँ पे एक मुझे लगता है कि एक चांस है साउथ अफ्रीका के पास। महाराज जिस तरह फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, अगेन शम्सी कैन प्ले ऑल्सो, ही बहुत इफेक्टिव हो सकता है, और जो वैरायटी ऑफ बॉलिंग है, लाइक जो डिलीवरीज है उनकी, आई थिंक मुश्किल हो सकता है, बिकॉज थोड़ा सा पिछले मैच में स्ट्रगल किया है। ऑल्दो जो अभी बात की हमारे सारे पैनलिस्ट ने कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, आई थिंक अभी तक इस टूर्नामेंट का सबसे तगड़ा मैच होने जा रहा है, और परफेक्ट कंडीशंस मिलेंगी, परफेक्ट पिच मिलेगा। इनडिसाइसिव होंगे यहाँ पे दोनों टीमें कि पहले बैटिंग करें कि बॉलिंग करें, तो आज बड़ा मुश्किल सा फैसला होगा दोनों के लिए। के खिलाफ अगर मैं खेलूं तो मैं मिस्ट्री स्पिनर तो ज़रूर डालूं। महाराज तो है ही है मेरे पास। आई विल शम्सी की जगह आई विल प्ले शम्सी, बिकॉज कोत्सी ने पिछले मैच में भी कोई खास बॉलिंग नहीं की, एंड में तीन छक्के खा गया वो नंबर 11 के बैटर से। ही इज यंग, उसकी पेस है 140 प्लस, वो बॉलिंग करता है, जोर लगाता है, बट टुमारो अगेंस्ट इंग्लैंड एट वेंकटे यू नीड बिट ऑफ वेरिएशन इन योर बॉलिंग एंड वैरायटी। एक चीज और भी हो सकती है ना कि उन्होंने स्ट्रगल किया अगेंस्ट अफगानिस्तान। इंग्लैंड की जो बैटिंग है, दे स्ट्रगल्ड अगेंस्ट अफगानिस्तान, और राशिद जो है वो उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो एज यू सेड वसीम भाई, तबरेज शम्सी शुड प्ले इंस्टेड ऑफ कुर्सी। ओवरथिंक नहीं करना चाहिए साउथ अफ्रीका को। पिछले मैच में ओवरथिंक कर दिया, टॉस पे भी जो डिसीजन किया, फिर शम्सी को नहीं खिलाया जी, ओवरकास्ट कंडीशंस है। आप सिंपली देखें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। बैटिंग आपकी इतनी फॉर्म में है कि आप जब पहली बैटिंग करते हैं तो आप अपोजिशन को ऑलमोस्ट गेम से बाहर कर देते हैं, और फिर आपके पास एक बैलेंस होता है। आप एक ही किस्म का कभी भी जो है वो अटैक नहीं रखते, वेरिएशंस चाहिए आपको। रिस्ट स्पिनर आ जाता है आपके पास, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, 3 फास्ट बॉलर्स, तीनों विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर है। दैट्स इनफ, आई थिंक इनफ वैरायटी इन योर टीम। सो उसको ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल रखें, क्लैरिटी रखें, और पहले बैटिंग करेंगे, टॉस जीतें और पोस्ट अ बिग टोटल, एंड देन योर बॉलिंग इज़ कंप्लीट। Yeah, that's the right way of doing business on today's day in Mumbai. वैसे भी अगर आप देखें कि अभी तक ड्यू हम कर रहे हैं, लेकिन जो भी टीम बॉलिंग कर रही है ड्यू के चक्कर में वो खुद ही फंस जाती है। ड्यू ने अभी तक वैसे कोई खास ओवर ड्यू है ड्यू अभी तक कोई सैलाब आएगा नहीं ड्यू मगर ड्यू ने कुछ किया नहीं है वसीम। ड्यू अभी हमने जो पिछला मैच पाकिस्तान सैलाब आएगा। यार एक मिनट रुके, ये बात तो एंजॉय करें। सैलाब थोड़ा सा हंस लेने दे मुझे। वसीम भाई कह रहे हैं और सैलाब आएगा तो कुछ ड्यू पड़ रही है और की सैलाब आएगा नहीं पड़ी है। कल पहले दिन जो मलिक ने एक बात की थी कि ड्यू उस तरह पड़ रही है कि जो इवन स्पिनर्स को वो
हेल्प कर रही है, वो ग्रिप अच्छा हो रहा है, बॉल स्पिन भी ज़्यादा शुरू हो जाता है। एक्सप्लेन दैट टू मी, पढ़ भी रही है और हेल्प भी कर रही है, दैट डजंट मेक सेंस। ये कर रहे हैं ना नो सीरियसली, लोगों को बताने के लिए। एक जो बॉल की जब तक ये सीम देखेंगे, ये जब आपको पता है, आपने भी, ये जब गीली हो जाती है बिल्कुल और सॉफ्ट हो जाती है, ये ग्रीसी हो जाती है, देन समझे बॉलिंग बिल्कुल आपकी खत्म। एक होता है कि खुद स्पिनर थोड़ा सा मॉइस्चर लगाते हैं बॉल को ताकि वो बॉल आपके हाथ में सही ग्रिप करे, यानी बहुत गीली नहीं होती बॉल। तो लग ऐसे रहा है कि इतनी गीली नहीं हो रही कि मुश्किल हो रही है उनके हाथ से। टेक्निकल वजह मिसबा मेरा ख्याल है और भी है। हमने देखा है कि जो ग्रास कवर है, जिन पिचेस के ऊपर हमने देखा कि टर्न हुआ प्रीवियसली सेकंड इनिंग में ड्यूरिंग ड्यू, उसमें स्कैटर्ड थी, लाइक ग्रास के पैचेस थे, लाइक वहाँ पे मट्टी सैंड थी। बेसिकली जब सैंड के ऊपर ड्यू गिरेगी तो नेचुरली वो थोड़ी सी सॉगी हो जाती है, वो ग्रिप करने में उसमें आसानी होती है बॉलर्स को। राइट जनाब, ड्यू तो नहीं आई और सैलाब भी नहीं आया, मगर इस वक्त ब्रेक जरूर आ गई है। लेते हैं एक वक्त फ्रॉम द पेविलियन, विल सी ऑन द अदर साइड, डोंट गो अवे। Well, welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. Today we're taking you to Lucknow and to Mumbai. दो बड़े मैचेस हैं आज। दूसरे मैच के बारे में हम पहले बात कर रहे थे, that was South Africa versus England. बहुत ज़बरदस्त टाकरा होगा, मुंबई में होगा, and it's going to be a game worth watching. And a lot of competitions and matchups there that you will see today. But उससे पहले मुकाबला है नेदरलैंड्स का श्रीलंका के साथ लखनऊ में। ये पहला मुकाबला है आज का। आपसे कुछ देर बाद हम आपको बराह रास्त ले चलेंगे लखनऊ, जहां से आप देख सकेंगे इस मैच को, टॉस को, पिच रिपोर्ट वगैरह को। मगर इसके ऊपर बात कर लेते हैं पहले श्रीलंका नॉट डूइंग एज well as they would like to do. Of course they are short on their players, they've been hit by injuries, Misbah, but they would think that these are easy points to pick up against Netherlands. इस वक्त तो मेरे ख्याल में वो काफ़ी लो इन कॉन्फिडेंस होंगे, स्पेशली जब आप 350 रन्स करके भी मैच हार जाएं और फिर द वे दे वर अगेंस्ट इन अ सिचुएशन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इतने ज़बरदस्त स्टार्ट के बाद सडनली जो चीज़ उनकी क्लिक कर रही थी, उनकी बैटिंग, वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके, बड़ा टोटल नहीं कर सके और वो मैच भी उनके हाथ से निकल गया। तो वरीज होंगी उनके कैंप में और हसरंगा की कमी उनको नज़र आ रही है। फास्ट बॉलर्स फायर नहीं कर रहे, कॉन्फिडेंट नहीं है टीम इस टाइम पे कि 350 करके भी अगर हम नहीं जीत सकते तो देन व्हाट इज़ गोइंग टू बी द स्कोर, राइट। एंड ऑब्वियसली ये भी एक बड़ा सवाल है कि हमने करना क्या है। अब डे गेम में जब आप जाते हैं और टॉस भी आपके हाथ में नहीं है और स्पेशली आपकी अपोजिशन बड़ा ज़बरदस्त मैच खेल के आ रहे हो, बड़े प्रोफेशनली वो खेल रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग करते हैं, उनके पास बैटिंग की एक डेप्थ भी है, एंड तक उनके टेल एंडर भी रन्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वरीज होंगी श्रीलंकन कैंप में। बट दे डेफिनेटली वांट टू विन दिस गेम, एटलीस्ट रजिस्टर करें एक विन, अपनी कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल पे आए। तो लेट्स सी हाउ दे गो अबाउट देयर बिजनेस। नेदरलैंड्स के बारे में बड़ी आपने अच्छी बात की कि वो डेप्थ तक उनकी बैटिंग भी है, ऑलराउंडर्स भी उनके लड़ते हैं, उनकी मतलब यू नो ऑल दे एक्चुअली बेस्ट डिलाडे है, इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर, ही इज एवरेजिंग अबाउट 40 विद द बैट एंड अबाउट 22-24 विद द बॉल। यस, दिस ईयर एज वेल। सो जब भी आता है वो स्कोर भी करता है, रन्स भी करता है। फिर उनका फास्ट बॉलर मीकरन इज वेरी गुड, who's got couple of wickets in the previous game, and Van Beek is fit, he's got 2 wickets as well. So yeah, and their off spinner, this young boy Aryan Dutt, he really bowling well as well, and previous game he hit 2-3 sixes, so it was a game changer. Yeah, it was. And so I was asking this question, I'll share it with you as well. It's not that you can just walk into the game with Netherlands thinking this is an easy game and we can walk away with 2 easy points. नहीं, नीदरलैंड का कॉन्फिडेंस विल बी स्काई हाई। मिसबा ने भी एक्सप्लेन किया, श्रीलंका का कॉन्फिडेंस विल बी द ऑपोजिट। Yeah. वो बिल्कुल गिरे होंगे, कप्तान भी इंजर हो गया, वो भी बाहर हो गया, सो दे विल बी ऑल ओवर द प्लेस, एंड नीदरलैंड विल सेटल्ड एंड दे विन अंडर देयर बेल्ट, एंड दैट टू वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड इन दिस वर्ल्ड कप द वे दे स्टार्टेड साउथ अफ्रीकन्स। आज की जो मैच है उसमें फेवरेट मुझे लगता है नीदरलैंड्स है अगेंस्ट श्रीलंका। Yes, अगेंस्ट श्रीलंका। Yes, a lot of people are saying that, बिकॉज अगर हम प्लेयर टू प्लेयर
कंपैरिजन करें सो नीदरलैंड्स के पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। उनकी स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट देख लें, उनके पेस बॉलर्स देख लें, बैटर्स जो हैं वो काफ़ी सारे इन फॉर्म हैं, जिसमें उनका कैप्टन है स्कॉट एडवर्ड्स, कॉलिन एकरमैन और बस डिलाइडे। ये सारे इन फॉर्म है। इवन विक्रमजीत सिंह ने भी रन्स बनाए थे अगेंस्ट अस इन द फर्स्ट मैच। तो सारे जो है इन फॉर्म है। सिर्फ ये है कि जो उनकी परफॉर्मेंसेज आती हैं वो छोटी छोटी आती हैं। तो इनमें से अगर ये थोड़ी सी बड़ी परफॉर्मेंसेज आएंगी तो वो किसी भी बड़ी टीम को अपसेट कर सकते हैं, जो कि हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने किया। लेकिन आज जो फेवरेट्स नज़र आ रहे हैं वो नीदरलैंड्स नज़र आ रहे हैं। आपके लिए भी मोइन? मैं थोड़ा सा श्रीलंका को यहाँ पे कहूँगा कि अच्छी टीम है, कम बैक करती है और यंग टीम है, ऑल्दो के इनएक्सपीरियंस टीम ज़रूर है। बैटिंग में ऊपर से भी कभी स्ट्रगल किया और कभी मिडिल ऑर्डर ने बहुत स्ट्रगल किया है। छोटी पार्टनरशिप को कन्वर्ट नहीं कर सके बड़ी पार्टनरशिप्स के अंदर तो ये थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर का रोल आज ज़रा इम्पॉर्टेंट होगा यहाँ पे श्रीलंका के लिए। कुछ साल पहले जो फॉर्म में नहीं थे प्रीवियस मैच में, एक पॉजिटिव है श्रीलंका कि उन्होंने भी स्कोर कर दिया। आई थिंक अगर अच्छा स्टार्ट यहाँ पे मिल जाता है नीदरलैंड्स के खिलाफ तो देन दे हैव फुल पोटेंशियल कि वो एक अच्छा टोटल पोस्ट कर सकते हैं अगर बैटिंग पहले करते हैं तो। All right, we have a match preview for you. Let's take a look. Well, there you have it, that match preview. Very interesting thing. शोएब उन्होंने बड़ी मजेदार बात की। हाँ जी, बहुत मजेदार। प्लीज बताएं ना। जैसे वसीम भाई ने नहीं की और सलाम है। लेकिन बाकी वो एक जो बहुत मजेदार बात थी वो कहते हैं क्वाइट नॉर्मल था। उन्होंने कहा yes we lost 3 games but it's very normal. Somebody वो मेरे लिए but it's not. It is not normal. From Netherlands, You got to do perspective, I think that's something to at least get 2 points. 3 हार गए, पीछे रह गए 6। I know, but look, they won that game against South Africa, and I think We're that talking about Sri Lankan fielding coach said that. Sorry, my apologies. Look at Come me, back. man. No, Good early morning, morning. guys. Look into my eyes. Welcome back to the Look into my eyes. Look into your eyes. Come back. Look into. Ready to go. उठ जाओ बहन, सुबह हो गई। वो मैंने कहा था वो गाना गाएंगे eye to eye. Nope. Eye to eye. नहीं, okay. You're right. But interesting. It's quite normal. That was really Yeah, cute. yeah, that was- With yeah, that, we're going to take a break right here so that we can come back to our senses. We'll see you on the other side. Hello, good morning, Assalamu alaikum, and welcome to the Pavilion. आप देख रहे हैं Sports, 10 Sports and the Airwise app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. आज 2 बड़े मुकाबले हैं। सबसे पहले हम आपको लखनऊ लेकर जाएंगे जहां पे नेदरलैंड्स का मुकाबला श्रीलंका है, और उसके बाद मुंबई जहां पर एक बहुत बड़ा टाकरा है। दैट इज द डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। इस वक्त मेरे साथ पेविलियन में मौजूद I've got 4 former captains of Pakistan, 4 outstanding cricketing minds who've been analyzing games with us throughout this journey. I've got Shoaib Malik, Misbah मोइन खान एंड वसीम अकरम। बात कर रहे थे लखनऊ के हवाले से थोड़ी सी, और ये जो टीम है श्रीलंका की, इसके अंदर क्या चेंजेस हैं? शुड बी एंटिसिपेट एनी चेंजेस? और Kushal Pereira got hit against I think concussion against Australia. जी, So उसका कंकशन टेस्ट हुआ है, अभी उसकी पता नहीं लगा Clearance कि वो नहीं आया खेलता है कुछ। नहीं खेलता, बट दैट्स अ काइंड ऑफ अ iffy situation for Sri Lankan side, yeah. because Kushal is not in good nick, but he's a very good player and he's their experienced players. लास्ट मैच में उसने Last रन्स भी match में बनाए हैं। बनाए last match में, बिल्कुल yeah. बनाए हैं उसने रन्स। और कुशाल मेंडिस जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस है। ही इज़ बीन इन गुड फॉर्म। और जो उनके बीच में लेफ्टी आते हैं चरित असलांका, उनसे भी बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशंस And हैं। Sadira. धनंजय डिसिल्वा जो हाईली टैलेंटेड हैं, बट उनकी उस तरह जो है वो फायर पावर नहीं आ रही है, क्योंकि उनके कैप्टन भी जो है वो इंजर्ड हो गए हैं एंड ही इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। तो इन पे अब हाई एक्सपेक्टेशंस है कि अगर ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिलता है तो वो नीचे से जो है वो कोई ऐसी इनिंग्स खेलें कि जो 30 बॉल्स पे 50 रन्स वाली ऐसी इनिंग्स खेलें, ताकि टारगेट जो है वो ऐसी जगह पे जा सके कि बॉलिंग में वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो टारगेट ऐसी जगह पे जा सके जहाँ एक्स्ट्रा आप 30-40 रन्स बना रहे हैं, ताकि अगर कोई आपके बॉलर्स 2-3 मार भी पड़ जाए उनको तो फिर भी यू हैव इनफ रन्स टू डिफेंड। yeah, that is going to be key to the whole thing. We've got a package here, a feature on Netherlands. Let's take a look. Well, defeating England in Lords in the T20, and now this in the ODIs. Definitely the new giant slayers. And with that, we're going to take a break on the Pavilion. See you on the other side.
Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड दी ARY Zap ऐप एंड we're getting closer to the action. But इस वक्त हुआ है एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस का, brought to you by Palmolive Natural. Right, let's start off with you, Shoaib Malik. For you, expert predictions for the first match and the second match. Let's go. First match Netherlands, second match England. All right, Netherlands and England. Moin Khan? Sri Lanka, England. Sri Lanka and England. Wasim? I'll go Netherlands and England. Netherlands and England. And Misbah? 8-bit. 8-bit Gulkan. 8-bit Gulkan. 8-bit Gulkan. 8-bit Gulkan. Let's go. Sri Lanka, Sri Lanka? South Africa. Sri Lanka, South Africa. All right, and those are your expert predictions brought to you by Palmolive Natural. All right, Misbah, let's start off with you. Player to watch out for. Oh, sorry, first the link and then we come to you, Misbah. Just hold that thought right there. Player to watch out for, brought to you by Ufone. Right, Misbah, let's go to you now. Player to watch out for. Kushal Mendes Vishal Mendes. and Quinton de Kock. Quinton de Kock. Wasim. पहले मैच का और दूसरे मैच का. I'll go for Bas Dilade Dilade. from the first game. Second game, I'll go for Ben Stokes. Ben Stokes. Okay. We'll find out. वो playing 11 बाद में आएगी जब उनका तो मैच मैं शुरू प्लान बी होगा. भी दे दूं आपको. जी. My plan B will be tomorrow. I will go. Tomorrow? Will go for, There's no tomorrow. There's today. Today, the second match, you mean? Yes, right? second game today. I'll go for 8-bit. 8-bit Gulkan. 8-bit मुश्तरी Gulkan. से I'll हिसाब go लगा ले for तो- Joe Root. Joe Root. Okay, Root it is. Moin. Yeah, it's Kushal Pereira from Sri Lanka. Pereira for the first game. Or from England, I'll go with Johnny Bairstow if he plays. Bairstow. All right. And for you, Shoaib? Colin Ackerman from Netherlands. Ackerman. And for second game, I would go with David Malan. David Milan. And those are your players to watch out for. Brought to you by Ufone. So, Misbah, let's talk about the Lucknow venue quickly. What do you think would be a good total if either of the teams batting first toss के बाद जो भी आता है फैसला? But आपको क्या लगता है? What would be a good target? Random question at all. I think Wasim is really bright and shiny this morning. ड्यू का जहन में रखते हुए बताइए। ड्यू का सलाम का जी ड्यू सुबह नहीं पड़ेगी, पिछली रात वाली होगी। Yeah, what should be the ideal total? अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करती है तो जैसी श्रीलंका की बॉलिंग फॉर्म चल रही है उसको देखते हुए एनीथिंग ओवर 300, क्योंकि नीदरलैंड अच्छी बैटिंग करती हुई आ रही है, उनकी बैटिंग डेप्थ भी हमने देखी है और बॉलिंग भी उनकी स्ट्रॉन्ग है, तो श्रीलंका के लिए मुझे लगता है कि 300 से ऊपर उनको रन्स करने पड़ेंगे वरना उनको मुश्किल होगी। All right, thank you for that. And with that, Shoaib, for you, what do you think that second game? Everybody's talking about that कि आज का बड़ा मुकाबला है, मुंबई का मुकाबला है. आपकी नज़र में दोनों टीमें जो हैं वो पहले बैटिंग करना चाहेंगी, लेकिन जब बैट कर भी लें पहले तो स्कोर कितना लगाना चाहिए उधर डिफेंड करने के लिए? देखिए दोनों साइड्स देखें तो काफ़ी सारे बैटर्स हैं और उनके बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, और जैसे वसीम भाई ने कहा कि मुंबई की पिच जो है वो बैटर्स को सूट करती है, तो आई गेस 350 होना चाहिए। 350 मिनिमम 350 मिनिमम 350 वरना 400 मैक्सिमम तुसी 700 कराना है। मिनिमम 350 मैक्सिमम आपने 700 जो है करवाना है। सॉरी नहीं, मिनिमम होने चाहिए, दोनों टीमें तगड़ी हैं, इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में, तो 350 करेंगे तो मैं स्टोरी सुनाता हूं, डिफेंड कर सकते हैं। 700 वाली हम लोग गए 1997 में इंग्लैंड टूर पे ए टीम के साथ, तो हमारे मैचेस थे सारे काउंटीज़ के साथ, और उस टीम का हिस्सा ये सब लोग थे, शोएब भाई, शोएब अख्तर, हमारे कैप्टन जो थे वो मोहम्मद वसीम थे, अली नकवी, मुजाहिद जमशेद, मतलब बहुत अच्छी टीम थी। तो हम लोग 11 मैचेस खेले काउंटीज़ के अगेंस्ट और सारे हारे। आखिरी मैच उनकी ए टीम बनी, जो बेस्ट परफॉर्मर थे ना सारे, वो उसकी एक टीम बनी जो काउंटी के बेस्ट परफॉर्मर थे। तो हमारे साथ एक मैनेजर आए हुए थे, वो ये कहते थे कि 500 बनाओ और दूसरी टीम को 2 दफ़ा आउट करो।
तो वो हमारे साथ होता था। दूसरी टीम 500 बनाती थी, हम 2 दफ़ा आउट होते। अब बेस्ट टीम के अगेंस्ट मैच आया, वो मैनेजर साहब ने फिर बोला कि जी 500 बनाना है और अगली टीम को 2 दफ़ा आउट करना है अगेंस्ट द बेस्ट साइड। So that manager never had plan B. नहीं कोई प्लान नहीं। आगे सुनना क्यों है। अच्छा, हम में एक प्लेयर था, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था कंसिस्टेंटली, उनको उस मैच में ड्रॉप कर दिया। अब वो गुस्से में बैठा हुआ था। अब उन्होंने ना फिर मैनेजर साहब ने कहा इस मैच में 500 बनाना है, अगली टीम को 2 दफ़ा आउट करना है। वो जो गुस्से में बैठा हुआ था, जो परफॉर्मर था, वो कहता है सर मुंडला 500 काटे 700 बनने चाहिए। That's Moin Khan right there for you. Gentlemen, thank you very much. Misbah, thank you. Shoaib, thank you. Moin, thank you. And a very happy, shiny Wasim Akram this morning. Thank you. You're taking us out for breakfast, I believe. आप हमें नाश्ते पे लेके जा रहे हैं। बहुत से पराठे जो हैं हमारे लिए तले जा रहे हैं, हम उसके लिए जा रहे हैं और आपके लिए 2 मैचेस हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी at the end of the day. See you on the other side of the 2 games.